Good morning everyone, once again welcome you in the geometry session. So again we are going to start the geometry session that we had already studied about the exercise 1.1 and the basic properties of the ratio of the areas of triangles. That we know that ratio of the areas of any two triangles is always equal to the ratio of the product of their corresponding heights and corresponding bases. Regarding this property, we had studied about the four conditions in the previous session. That is, first we know that what happens if the heights of the both triangles is same. At that time we know that ratio of the areas of both of the triangles is equal to the ratio of their corresponding bases. सेकेंड कंडीशन में हमने देखा था कि अगर दो ट्रायंगल्स के बेसिस सेम होंगे तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स. और तीसरी कंडीशन हमने देखी थी इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम हाइट एंड सेम बेसिस देन दे आर इक्वल इन एरियाज. उसके बाद हमने देखा था इफ टू ट्रायंगल्स आर मेड बाय द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल देन वी नो दैट दे आर आल्सो इक्वल इन एरियाज. और इस पे डिपेंड जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी उसे भी हम पहले सेशन में देख चुके हैं. बट in our today's session we are going to learn about the basic proportionality theorem. That is basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem is also identified as BPT theorem. Remember, this is the abbreviation of the basic proportionality theorem, that is BPT. Okay. So in our today's session we are going to start now. So what is BPT theorem and what is the statement of the BPT theorem? BPT theorem is also identified as a Thales theorem too. इसको Thales theorem भी कहा जाता है BPT theorem को. अब हम इसका डिस्कस करेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है और उस स्टेटमेंट को हम उसके बाद प्रूव करने वाले हैं. So the statement of BPT theorem, that is this: if a line parallel to any one of the side of a triangle and if that line intersect remaining two sides of triangle in two distinct points as shown in the figure, then that line divides both sides in equal proportion. फिर से एक बार दोहराता हूँ, आप फोकस करिए फिगर पे. मैं समझा रहा हूँ आपको कि स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन उस ट्रायंगल पे ड्रॉ की हुई अगर कोई भी एक साइड को पैरेलल है और दूसरे दो साइड को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो वो साइड या वो लाइन उन दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है. तो इसका मतलब ये होगा, सपोज हियर वी हैव अ लाइन L which intersect the two sides AB and AC of triangle ABC in the point P and Q respectively, and line L is parallel to the third side of triangle ABC, that is BC. And we have to do that this line L divides side AB and AC in equal proportion. It means AP upon BP equals to AQ upon CQ. ये हमें प्रूव करना है. तो चलिए प्रूव करते हैं. पहले हम लिखते हैं what is given in the figure, what is the part to be proved in the statement and what will be the necessary construction that we have to draw in the figure. पहले हमें ये सोचना होगा कि इसका given part क्या है, to prove part क्या है और अगर जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे. तो पहले लिखते हैं given. So we have the given here. In triangle ABC, line L parallel to side BC, comma line L intersects side AB and side AC at point P and Q respectively. So ये है हमारा गिवन पार्ट. तो हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि ट्रायंगल ABC में लाइन L BC को पैरेलल है और दो साइड AB और AC को पॉइंट P और Q में इंटरसेक्ट करती है. तो पार्ट टू बी प्रूव क्या है, तो हमें क्या प्रूव करना है. सो पार्ट टू बी प्रूव, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट इज AP अपॉन BP इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ. दिस इज द पार्ट टू बी प्रूव. इसमें हमें प्रूव करना है कि जो डिवाइड करने वाली लाइन L है वो साइड AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी. तो बट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव the two sides are dividing in the equal proportion. So that's why we have to draw some another construction that is required for the conclusion. Okay, तो conclusion के लिए required होगी. तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं. तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले फिगर में दिखाया है यहाँ पे,
we drawn the two segments PC and segment BQ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे draw segment PC and segment BQ. तो ये दो सेगमेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे हम इसका लिखेंगे प्रूफ। तो पहले मैं आपको ये प्रूफ ओरली समझाता हूँ, बाद में राइटिंग में फिर से एक बार समझ लेंगे। तो पहले हमें ये सोचना है कि हमने जो प्रीवियस सेशन में देखा था रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम ये प्रूफ दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बाय जॉइनिंग द सेगमेंट BC एंड सेगमेंट BQ वी गेट टू अनदर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CQP। ये दो ट्रायंगल्स, तो इन दो ट्रायंगल का रिलेशन हमें ट्रायंगल APQ के साथ बिल्डअप करना है। और वो कैसे होगा? इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ ये दो ट्रायंगल डिफरेंट बेसिस पे है, AP और BP। इफ आई ड्रॉ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द पॉइंट Q, अगर मैंने Q से अल्टीट्यूड ड्रॉ की तो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं दिस अल्टीट्यूड इज अ कॉमन अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल APQ। अल्टीट्यूड इज आल्सो हाइट। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि ये जो अल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल APQ की भी हाइट है और ट्रायंगल BPQ की भी हाइट है, बिकॉज़ ट्रायंगल BPQ इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड APQ इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमें मालूम है कि उसके दो जो अल्टीट्यूड होते हैं वो ट्रायंगल के बाहर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो अल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल BPQ की सेम अल्टीट्यूड है। और हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, उसके एक कंडीशन के थ्रू हमें ये पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स की हाइट सेम होती है तो उनके एरियाज का रेशियो प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस होता है। तो यहाँ पर हम ये नोटिस कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू AP अपॉन BP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Similarly, by constructing an altitude from the point P to the opposite side AQ, again in triangle APQ and triangle CQP, now APQ is an acute angle triangle and CQP is an obtuse angle triangle, तो इसका भी एक अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर आएगा। यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि अब ये जो अल्टीट्यूड है ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल CQP की कॉमन अल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP इट इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। बट ये भी काफी नहीं है, तो अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ट्रायंगल BPQ एज वेल एज ट्रायंगल CQP। इन दोनों ट्रायंगल का एक दूसरे से क्या रिलेशन? तो यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CQP दे आर बेस्ड ऑन द सेम बेस PQ। उन दोनों का जो बेस है वो सेम है PQ और इन दोनों की हाइट भी सेम होगी, क्योंकि हमें मालूम है ये दो ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस में कंटेन कर रखे हैं। इसका मतलब लाइन L एंड BC ये पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइन की जो कांस्टेंट हाइट होती है वो सेम होती है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हाइट। तो ये दो ट्रायंगल हुए सेम हाइट और सेम बेस के, और दूसरा मालूम है हमें दे हैव इक्वल इन एरियाज। इसका मतलब होता है BPQ एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हम ये प्रूव कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP। हो गया। तो अब इनका जो एरिया है वो पहले हमने दो स्टेटमेंट में देखा है कि वो किससे प्रोपोर्शनल है, AP अपॉन BP एंड AQ अपॉन CQ। बट हालांकि ये दोनों एक रेशियो इक्वल से, इसका मतलब AP अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन CQ आएगा। तो ये हुआ आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ। अब हमें राइटिंग करते करते इसे और अच्छे से समझना है, तो आप कॉन्सेंट्रेट करें। पहले हम प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। इन दो ट्रायंगल्स में हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल्स टू दैट इज AP अपॉन BP एंड द रीजन ऑफ दिस वन, इसका रीजन होगा ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। ये दोनों ट्रायंगल सेम हाइट के, इसको हम इक्वेशन में पढ़ेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल नेक्स्ट APQ एंड ट्रायंगल CQP। अब ये दो ट्रायंगल हम देखेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP इज आल्सो इक्वल टू AQ अपॉन CQ, और इसका रीजन होगा अगेन ट्रायंगल्स हैविंग
सेम हाइट, और ये हुआ स्टेटमेंट नंबर 2, दूसरा स्टेटमेंट हमारा। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल और मे बी ट्रायंगल BPQ and triangle CQP, triangle CQP have same base PQ and same height because they are contained in two parallel lines. So therefore area of triangle BPQ equals to area of triangle CQP होगा, और इसे हम स्टेटमेंट नंबर 3 देंगे। So therefore from statement number 1, statement number 2 and statement number 3 के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं area of triangle APQ upon area of triangle BPQ equals to area of triangle APQ upon area of triangle CQP। ये सेम आएगा फ्रॉम 1 to 3। therefore हम कह सकते हैं AP upon BP equals to AQ upon CQ from 1 and 2, hence proved। तो ये हुआ आपका पीपीटी थ्योरम प्रूफ, जहां पर अगर ट्रायंगल की एक साइड को कोई भी एक लाइन अगर पैरेलल होती है जो कि दूसरे दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन उस दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है एज लाइक दिस। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हमें ये देखना है व्हाट विल बी द कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स क्या होगा, अगर होगा तो वो ट्रू होगा क्या, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में हमने पहले इसके बारे में स्टडी की है कि इफ अ प्रॉपर्टी इज ट्रू देन दैट इज नॉट नेसेसरी द कॉन्वर्स मस्ट बी ट्रू। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर प्रॉपर्टी ट्रू है तो हर बार उसका कॉन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए, बिकॉज देयर आर द टू पॉसिबिलिटी, मे बी कॉन्वर्स इज ट्रू और मे नॉट बी। तो हमें पहले नोटिस करना होगा कि व्हाट विल बी द कॉन्वर्स ऑफ दिस वन। अब यहां पे हम सोचेंगे कि इसका कॉन्वर्स क्या होगा। तो जैसे कि हमने स्टेटमेंट में देखा था कि अगर ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल होने वाली लाइन दूसरे दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो साइड उन दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। यहां पे हमने प्रूव किया है। सो अब कॉन्वर्स क्या होता है, तो कॉन्वर्स इज द इंटरचेंजिंग ऑफ एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हमने 9th में पढ़ा था कि इंटरचेंजिंग करनी होती है, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट की जगह, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट की जगह। अब ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या है ये भी बता दूंगा एक बार, कि कंडीशनल स्टेटमेंट में जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है देन तक उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और देन से स्टार्ट होता है लास्ट तक उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को हम इंटरचेंज कर दें तो जो स्टेटमेंट क्रिएट होगा उसे हम कॉन्वर्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कॉन्वर्स है वो इसका जो स्टेटमेंट है उसके एग्जैक्ट अपोजिट होगा। तो हम यहाँ पे कॉन्वर्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा कि आप यहाँ पे इसको उल्टा करके देखते हैं, इफ अ लाइन intersect any two sides of a triangle in equal proportion then that line parallel to the third side of a triangle। हो गया होगा। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि अगर लाइन L ट्रायंगल ABC के दो साइड AB और AC को इंटरसेक्ट करती है, बट लेकिन वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में, लाइक दैट AP upon BP equal to AP upon CQ, then we can say that line L is must be parallel to the line side BC। तो हम कह सकते हैं कि लाइन L साइड BC को पैरेलल होनी ही चाहिए। तो ये जो कॉन्वर्स है वो ट्रू है, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ आपको खुद को लिखना है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्योंकि आपको जो कॉन्वर्स है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, कॉन्वर्स आपको खुद को स्टडी करने हैं। बस इसका जो स्टेटमेंट होता है वो आपको याद रखना है, क्योंकि उसका हम एप्लीकेशन करेंगे बाय द सॉल्विंग प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें उसे यूज करना है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, इफ लाइन L
intersects side AB and AC at points P and Q of triangle ABC such that AB upon BP equals to AQ upon CQ, then we can say then line L must be parallel to side this. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर लाइन L ट्रायंगल की साइड AB और साइड AC को पॉइंट P और Q में इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि AP upon BP equals to AQ upon CQ आएगा, तो इसका मतलब होगा लाइन L must be parallel to the side. So this is the converse. You must have to write the proof of the converse as you want. ट्राई करो इसको लिखने का, और अगर आपने लिखा हो तो मुझे वो शो करो, मैं आपको रिमार्क दे दूंगा. So this is our BPT theorem and the converse of BPT. Thanks to all.